Okay. So hello everyone, welcome to Unacademy. I hope I'm live, I'm perfectly audible, perfectly visible. Guys, let's start today's session. Before that, let me tell you that we are launching new batches. 9th Feb को 2 batches launch कर रहे हैं. One of them is aim for CAT 2022. ये भी CAT के लिए है. And the second one is also for CAT. I hope. एक बार फटाफट हाय लिख दो. Sure. Very nice. Very nice. ओके गाइस, सो ये देखो ऊपर वाले नीचे वाले में सारे प्लस के बेनिफिट्स है. You have live classes, all batches in form of batches, structured batches. You have weekly tests, we provide you study materials and limited access to all the batches, everything on the platform. और Iconic में you get some added benefit. Personal guidance आपको ऐड हो जाता है, स्टडी प्लानर आपका बनता है, 1:1 लाइव मेंटरिंग मिलता है आपको, टेस्ट एनालिसिस होता है, पर्सनल एक्सपर्ट गाइडेंस, व्हाट फॉर, तो प्रोफाइल बिल्डिंग रिलेटेड थिंग्स के लिए वी हैव दिस एक्सपर्ट गाइडेंस एज वेल. वेलकम हर्ष, प्रांजल, आकाश. चलो ओके. और दिस इज द प्राइसिंग, आप चेकआउट कर सकते हो. ड्यूरेशन आपके हिसाब से प्राइसिंग नीचे मेंशन्ड है. 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. दिस इज फॉर आइकनिक और ये प्लस के लिए है. इयर्स प्लस विल कॉस्ट यू 22,550 माइनस 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट. We have this scholarship test on 13th of Feb, which which can offer you up to 100% scholarship. Guys, consider this. Also, we have this Ask Out feature. All of you know about this. इसमें आपको snapshot निकाल के भेजना, आपको solution in the form of video और PDF मिल जाएगा immediately. चलो, this was the question जो मैंने आपको दिन में दिया था. How many of you have tried this? Check this out. Eight teams A, B, C, D from Pool 1 and E, F, G, H from Pool 2. So 8 teams are divided in 2 pools, Pool 1 and Pool 2. Play in the World Cup tournament. Very nice. In each pool, each team plays with the remaining teams of the pool exactly once. Okay. The team which wins a game gets 5 points and the team which loses any game loses 5 points. Very nice. None of the games ends in a draw. Okay, you mentioned that none of the games ends in a draw. At the end of all the pool matches, the maximum difference between the points scored by any two team. Pool 2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये नहीं समझ में आया. Okay. For those who have not tried, I'll give you a maximum of 2 minutes और 2 minutes solve करने के लिए sufficient नहीं है. I'm giving you 2 minutes only to get a hang of the question. Question read out कर लो, उसके लिए है आपके पास 2 मिनट. Question समझ लो, उसके लिए 2 मिनट है. I'm not going to give you time to solve this question because ये दोपहर में already दे रखा था आपको. Okay. चलो, the discussion to this question will start at 9:13. Okay. Discussion starts at 9:13 p.m. चलो, पॉइंट सिस्टम क्या है? पॉइंट सिस्टम है if you win you get 5 points, that's it, and you lose 5 points. Okay, so point, either you get 5 points or you lose 5 points. Very nice. Pool 1 में maximum differences of 30 points. Pool 2 में maximum differences of 10 points. Okay. Sure, very good question. Read it. We'll start discussing this in a couple of minutes. And what happens when they proceed to the next round? In the semi-finals, a team in Pool 1 plays with a team in Pool 2
and the other team in the pool 1 plays with the remaining team in pool 2. Very nice. The points are awarded as in pool stage, with the teams carrying forward their points from the pool stage. मतलब pool stage में आपने जो point score किया है ना, suppose किसी टीम ने 10 point score किया है, वो 10 point consider होगा in semi-finals as well. Yes. After the semi-finals, the maximum difference between the points scored by any two teams is 0. Okay. And the two teams which stand in the first two positions played the finals, and they were not from the same pool. Okay, they were not from the same pool. The team from pool 1 won the tournament. Very nice. Chalo, let's discuss this. Aa jao. Let's discuss this. Okay. Do I have a blank space? Yes. चलो देखो, पूल 1 में ना, पहले पूल 1 की बात कर लेते हैं और उसके बाद पूल 2 की बात कर लेंगे. ओके, पूल 2 की बात कर लेंगे. देखो, पूल 1 में किसी भी पूल में देयर आर 4 टीम्स और PQRS, लेट अस से PQRS. आदर्श एक काम करो छोटू, नहीं, बिगिनर्स के लिए ना, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो 9 PM हियर ओनली. ये इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग सेट जो आप देख सकते हो, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में, कुछ तो सीखोगे ही. चलो, पूल 1 में ना, चलो, एक टीम का क्या हो सकता है स्कोर. कोई भी टीम है पूल में, उसका क्या होगा, इधर दैट टीम विल विन ऑल द 3 मैचेस, यस और नो, और द टीम विल विन 2 मैचेस, और द टीम विल विन 1 मैच, या फिर द टीम विल लूज ऑल द मैच. यही हो सकता है ना. किसी भी पूल में कोई टीम है, उनका ऐसा ही कुछ होगा ब्रेकअप. इधर दे विल विन ऑल द मैचेस, और दे विल विन 2 मैचेस, लूज 1 मैच, or they will win 1 match and lose 2 match, or they will lose all the 3 matches. अगर कोई टीम तीनों मैच जीतती है, that team will have 15 points. अगर 2 मैच जीती, उसका 10 point, 1 लूज -5, और अगर 2 जीती 1 हारी तो 5 पॉइंट्स मिलेगा टीम को. इस केस में -5 पॉइंट और इस केस में -15 पॉइंट. बोलो यस सर. सो ये 4 पॉइंट्स पॉसिबल है. इधर 15 इज पॉसिबल विथ अ टीम, और 5 is possible with a team, or -5 is possible with a team, or -15 is possible with a team. Okay. Now pool 1 में given है that max possible difference is 30. Max difference is 30. What does this mean? 30 कैसे पॉसिबल है? दो टीम्स का डिफरेंस 30 कैसे पॉसिबल है? दो टीम्स का डिफरेंस 30 कैसे पॉसिबल है? दो टीम्स का डिफरेंस 30 कैसे पॉसिबल है? One of the team must have got 15 and the lowest other team has got -15. We can say कि सर यहाँ 4 टीम्स है ना, T1 है, I don't know which one is. Yes, T1, T2, T3, T4. These are 4 teams. This team must have got 15 points. Yes, and this team must have lost 15 points. ये होगा ना, मतलब इस वाली टीम के तीनों विक्ट्रीज होंगी, इस वाली टीम के तीनों लॉस होंगे. करेक्ट? बोलो यस सर, यस सर. अच्छा छोटे, एक बात और सोचो. when a match is played between two teams, पूल स्टेज में अगर P वर्सेस Q का मैच हो रहा है, okay, when a match is played between two teams, after the match this team is given 5 points and this team loses 5 points. Okay, ultimately पूरे मैच का ओवरऑल पॉइंट में वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? 0. टेबल में P के सामने 5 आ जाएगा, मतलब जो भी टीम है P के सामने 5 आ जाएगा टेबल में, और Q के सामने -5 आ जाएगा. अल्टीमेटली टेबल में तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगा ना.
टेबल में तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगा, बोलो यस सर। हर मैच के बाद एक टीम को पॉजिटिव में पॉइंट मिल रहा है, दूसरे टीम को नेगेटिव में पॉइंट मिल रहा है, अल्टीमेटली टेबल में बोथ ऑफ देम द सम वुड बी 0। कैन आई से बाय दिस लॉजिक कि ये जो सपोज T2 का पॉइंट A बोल दिया, इसका पॉइंट B बोल दिया, या कुछ भी बोल दिया, दिस द सम हैज टू बी 0, कैन वी से दिस? और A और B इक्वल होगा बट वो साइन अपोजिट होगा, बस। हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। A और B इक्वल होगा बट ये दोनों इक्वल होंगे बट साइन अपोजिट होगा। ओके सर, इक्वल होगा, साइन अपोजिट होगा, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इक्वल होगा, साइन अपोजिट होगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर ये या तो 15 माइनस 15 हो सकता है। अच्छा, ये 15 माइनस 15 हो सकता है क्या, बोलो? दो टीम हो सकती है क्या जो तीनों मैचेस जीत जाए? T1 और T2 का भी मैच आपस में हुआ होगा ना, तो मतलब दोनों टीम जीत नहीं सकती ना। 15 पॉइंट मीन्स T1 वोन अगेंस्ट T2, T3, T4, और T2 को भी 15 दिया तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। सो 15 माइनस 15 पॉसिबल नहीं है, और अगर 15 माइनस 15 पॉसिबल नहीं है, 15 माइनस 15 पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा क्या पॉसिबल है? दूसरा क्या पॉसिबल है? दूसरा पॉसिबल है 5 माइनस 5। यस और नो? तो 5 मतलब क्या? 2 विक्ट्री 1 लॉस, और ये क्या? 1 विक्ट्री 2 लॉस, बोले यस सर। सो पूल 1 का क्या सिनारियो है छोटू? अभी यहां लिख देते हैं इसको, ठीक है। पूल 1 में जो है ना, T1, T2, T3, T4, 10 पॉइंट तो आप ले ही नहीं सकते ना कंचन। 10 पॉइंट आप स्कोर ही नहीं कर सकते ना। देखो 10 पॉइंट कैसे स्कोर करोगे? पॉइंट से तो आप 15 स्कोर करोगे, या 5 या -5 या -15। अगर आप तीनों मैच जीतते हो तो 15 पॉइंट, अगर 2 जीते 1 हारे तो 5 पॉइंट, 1 जीते 2 हारे तो -5, एंड तीनों हारे तो -15। 10 और -10 का तो स्कोप ही नहीं है, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। सो पूल 1 में 4 टीम्स है, और इन चारों टीम्स का ना जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है: 15, 1 1 1, 5 1 1 लॉस, -5 1 लॉस एंड -15 विच इज लॉस। ओके, ये पूल 1 डिकोड किया हमने। अब डिकोड करते हैं पूल 2। चलो डिकोड करते हैं पूल 2। अब पूल 2 में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम। पूल 2 में मैक्सिमम डिफरेंस दिया है इन्होंने 10। पूल 2 में मैक्सिमम डिफरेंस दिया है 10। अच्छा, मैक्सिमम डिफरेंस 10 दिया है, मैक्सिमम डिफरेंस तो 10 कैसे पॉसिबल है? सर 15 माइनस 5 पॉसिबल है, और सर देखो 10 कैसे पॉसिबल है? मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे T5, T6, T7, T8। ओके, आप ध्यान दो सर, ये 15 होगा, और ये एक केस ये पॉसिबल है, केस पॉसिबल है। आई एम नॉट सेइंग कि ये करेक्ट है, ये पॉसिबल है, ठीक है। 15 एंड -5। चलो अब देखो, ये मैक्स इस केस में डिफरेंस 10 हो रहा है। T6 और T7 को आपको क्या असाइन करना पड़ेगा? देखो, सम हैज टू बी 0, सम हैज टू बी 0। ओके, सो आपको इनको भी -5 और -5 असाइन करना पड़ेगा, बोलो यस सर। इनको भी नो सर। ओके यस, इस केस में मैक्सिमम डिफरेंसेस, इस केस में डिफरेंस तो 20 हो गया ना, ये तो 10 है ही नहीं डिफरेंस, ये तो डिफरेंस इज 20। यस, आप ये अलॉट ही नहीं कर सकते। करेक्ट। मुझे यहाँ +5 लिखना था, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया -5, सॉरी। तब ये डिफरेंस 10 का होगा, और अगर ये पॉजिटिव में है तो फिर ये भी +5 या +15 ही होगा, ये भी पॉजिटिव में होना पड़ेगा, जो भी होगा पॉजिटिव में होना पड़ेगा, एंड द सम विल नॉट बी 0।
करेक्ट. So we cannot assign them 15 and -5. ये हम नहीं कर सकते. We cannot do this. Okay, because the sum has to be 0 again. तो जब हम 15 नहीं दे सकते, तो 15 नहीं दे सकते तो 5 दे सकते हैं क्या? 5. तो यहां पर -5 देना होगा आपको. ओके, और इन दोनों में आप क्या पॉइंट असाइन करोगे? अगेन इन दोनों का सम हैज टू बी 0 बिकॉज ओवरऑल सम हैज टू बी 0. तो मेरे पास ऑप्शन बचता है बस ये 5 एंड -5. और कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास. और कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास. यस और नो? सो सेकेंड ग्रुप का ब्रेकअप क्या हो जाएगा? पूल 2 का ब्रेकअप क्या हो जाएगा? पूल 2 का ब्रेकअप वुड बी 1 लॉस, 1 लॉस, 1 लॉस, 1 लॉस. और क्या ऑप्शन प्रैक्टिकली नहीं है? आपको कुछ दिख रहा है तो बताओ. पूल 2, आई डोंट नो विच टीम दैट इज, बट ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया. ठीक है. पूल 2, आई डोंट नो विच टीम दैट इज. T5, T6, T7, T8. This team has 5 points. This team has 5 points. This team has -5 points, and this team has -5 points. चलो, ये हो गया इनका पूल. अब सेमीफाइनल में क्या होगा? सेमीफाइनल में चलो सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं. सेमीफाइनल में कौन सी टीम्स आएंगी? सेमीफाइनल में कौन सी टीम्स आएंगी? सेमीज में आ जाएगा T1, T2, T5 and T6. T1 will come with 15 points. T2 will come with 5 points. T5 and T6 will come with 5 and 5 points each. बोलो यस सर. T1, T2, T5, T6. अब क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों पूल 1 की टीम से, ये दोनों पूल 2 की टीम से. ओके. अब यहां पर गिवन है कि ये इंटरपूल खेल रहे हैं. इंट्रापूल मतलब T1 विल प्ले विद अगेंस्ट T5 और T6. T2 will play against T5 or T6. Let us say T1 plays against T5. Let us assume कि T1 plays against T5 and T2 plays against T6. Okay. अब यहाँ पे given है the maximum points scored, the maximum difference of the points scored is 20 after semifinals. After semifinals. Okay, what do you think? What will be the result? यहाँ पे 15 points है. T1 carries 15 points. T5 carries 5 points. These two carry 5 points. Difference 20 कब होगा? When T1 wins over T5. Yes or no? T1 wins over T5. So here T1 is victorious. T1 moves to the final. T1 moves to the finals. With how many points? 20 points. T1 moves to the finals with 20 points. Correct. अब T1 के अगेंस्ट कौन खेलेगा? T1 has played against let us say T5. T1 के अगेंस्ट कौन खेलेगा? Finals में it is clearly mentioned over here that the teams were not from the same pool. Teams were not from the same pool. Okay. So इस वाले में से ना T6 आएगा. T6 और T5 कोई भी आ जाएगा. अगर T5 T6 T1 के साथ खेला है तो T5 any of the two teams. Let us say T6. ठीक है. T6 आ जाएगा. Yes or no? ये फाइनल्स है. And who wins the finals? The team from pool 1 won the tournament. The team from pool 1 won the tournament. Who won the tournament? He is the winner. He is the winner. He won that final match. He won that final match.
यस। सो पूरे इसका हो गया, डिकोड कर लिया हम लोगों ने। ओके, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, वेयर इज इट, ये हो गया सेमीफाइनल्स। तो डी होगा आंसर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मुझे आंसर एक्चुअली नहीं पता, हम लोग चेकआउट कर लेंगे। T1 with 15 points versus let me say T5 with 5 points. Okay, यहाँ पे T2 with 5 points plays against T6 with 5 points. Very nice. And here T1 wins and here T6 wins. जो विन करा उसको मैंने गोल कर दिया। ओके, और फाइनल का सिनारियो क्या होगा? फाइनल का सिनारियो हो जाएगा T1 with 15 points will play against T6 with 5 points and sorry, not 15, 20 points na, 20 points will play with T6 with not 5 but 10 points क्योंकि इनको मिले ना points, and T1 will win the tournament. He is the winner. Now based on this, let's try to answer the question. The first question is, if A lost only one match, A lost only one match, A किस ग्रुप में है? A है पूल 1 में। ओके, पूल 1 में A लॉस्ट ओनली वन मैच, मतलब A किसको रिप्रेजेंट कर रहा? A रिप्रेजेंट कर रहा T2, यस और नो? A रिप्रेजेंट कर रहा T2, A लॉस्ट ओनली वन मैच एंड C won only against B in pool stage. C won only against B, मतलब C has won only one match, तो C would be T3. C has won only one match and C won that match against B. Okay, तो B कौन होगा? देखो, B would be T4 because B has lost all the matches ना, C will win against B. Then who would have won the tournament? टूर्नामेंट कौन जीता है? फिर T1 हमारा टूर्नामेंट जीता है ना, T1 जीता है टूर्नामेंट। Who is T1? T1 would be D automatically. The answer to the first question was D. Answer to the first question was D. चलो, values change from question to question. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A lost only against D in the pool stage, मतलब A is the team who lost only one match. ओके, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा? फिर अगेन A T2 को रिप्रेजेंट कर रहा एंड A lost only one match, तो A जो ये मैच आ रहा है, that match must be against T1. T1 will represent D again. A lost only one match and that is against D. Then what is the total number of points scored by A in the tournament? What is the total number of points scored by A in the tournament? Okay, so T2 का total point पूछ रहे हैं ना, बताओ T2 का total point क्या है? T2 टूर्नामेंट में कहां तक गया है? सर T2 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आके हार गया था। T2 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आके हार गया था। T2 का सेमीफाइनल में T2 came up with 5 points. T2 lost the semifinals, so T2 was out of the tournament with 0 points. बोलो yes sir. Or A was having 0 points after the tournament finished. Correct? Very nice. Moving to the third question of the set, और ये data ना, these data are question specific, so we cannot use this data to all the question. Question number 1 का data question 1 में, 2 का data 2 में, 3 का data 3 में, 4 का data 4 में. Third, if E won 3 matches in the tournament and G lost only against E in the pool stage. Okay, E won 3 matches in the tournament. Which team won 3 matches in the tournament from group 2? E group 2 में है ना, E pool 2 में है. Which team won 3 matches in the tournament from pool 2? Sir T6. ये क्या है? विन विन लॉस है ना, विन विन लॉस है, ये विन विन लॉस है, ये विन लॉस लॉस है, ये विन लॉस लॉस है. So it was team 6 which has won 3 matches in the tournament. 2 matches pool 2 में और 1 matches semi-final में. Okay, so E represents T6. Yes or no? E represents T6.
E won 3 matches in the tournament, and G lost only against E in the pool. G lost against only E. Okay. So there is another team which lost only one match. Which was that team? T5. And T5 lost only against E. So G was T5. There and G lost only against E. Okay. So there is only one more team in pool 2 which has lost only one match, and that is T5. Okay. So what they have asked? Then what is the number of points scored by E in the tournament? E का number of points. Okay, T6 का total point कितना है बेटा? T6 का total point है 5. Yes or no? T6 का semi-final में we had 5 point. Final में T6 went with 10 point. Final के points count करने हैं क्या? Mentioned तो नहीं है. मेंशनड तो नहीं है. अगर फाइनल में पॉइंट्स होगा टी का तो 15, नहीं हुआ तो 10 होगा, तो 15 नहीं हुआ तो 10 नहीं हो सॉरी 5 और 10 अगर फाइनल के पॉइंट्स काउंट करने हैं तो 5, क्योंकि फाइनल वो हारा है ना. 5 और 10 काउंट करना है क्या? आप लोग 5 आंसर दे रहे हो, काउंट कर लेते हैं. लेट्स से फाइनल में उसके 5 पॉइंट डिडक्ट हो गए तो 5. हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरली मेंशन होना चाहिए था. क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि फाइनल्स में भी वी आर गोइंग टू फॉलो द पॉइंट सिस्टम. ओके. What is the number of points scored by the team which won the tournament, including the point scored in finals? हाँ, शायद मान लेते हैं. चलो आ जाओ. देखो, अब इस क्वेश्चन से क्लियर भी है कि फाइनल में पॉइंट्स होगा. इस क्वेश्चन से क्लियर भी हो गया. What is the number of points scored by the team which won the tournament, including the point scored in the finals? तो T1 है ना. T1 25. T1 सारे मैचेस जीती है ना. T1 तो सब सारे मैचेस जीत गया. Yes, this question is clear. Last but not the least question of this set. What's the total number of matches won by a team which won the tournament? What is the total number of matches won by a team which won the tournament? 5. T1 5. चलो, am I clear with this? क्यों सॉरी? 5 नट वो विनर है T1. क्यों सॉरी? क्यों यार? सॉरी क्यों नहीं यार? एरर तो होता है ना, ह्यूमन एरर. मैंने भी किया ह्यूमन एरर इस क्वेश्चन में. यस और नो? यहाँ पे किया था ना मैंने भी. आप सॉल्व करोगे तो एरर आएगा ही. चलो, क्लियर है? देखो, समझा तो लिखो हैशटैग समझा, चमका तो लिखो हैशटैग चमका. क्विकली गाइस. एक मिनट. लेट मी डिस्कस द शेड्यूल. अभी हम लोग प्रॉपरली शुरू कर रहे हैं. तो हम लोग हैंगओवर में थे 2021 के. ठीक है, मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ. शेड्यूल क्या रहेगा? 1 PM डेली और मस्ट डू DILR सेट्स का सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं. ठीक है, मस्ट डू DILR सेट्स एंड इट वुड बी अ 60-minute सेशन. ठीक है, एंड 9 PM को वी आर स्टार्टिंग 9 PM डेली. हेलो प्रशांत, क्रिकेट अपडेट विद प्रशांत. 9 PM डेली हम लोग और DI बैच विच गोज बाय द नेम सक्सीड बैच. ये कल से शुरू कर रहे हैं. ठीक है, 9th of Feb से. 9th of Feb से शुरू कर रहे हैं. एंड दिस वन इज फॉर CAT 22. ये भी 60 मिनट्स का सेशन होगा. ठीक है, ये भी 60 मिनट्स का होगा और ये भी 60 मिनट्स का होगा. ठीक है, तो हाँ, कैट का करेक्ट. यू गाइस नीड टू ज्वाइन बोथ ऑफ दीज क्लासेस. इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे. सॉरी, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और इसमें हम लोग बेसिक्स करेंगे. ठीक है,
और एलआर का भी लॉन्च करेंगे बैच कुछ दिन के बाद, और वंस डीआई थोड़ा हो जाए एलआर भी लॉन्च करेंगे। ओके, तो गाइस यू नीड टू शो अप ऑन डेली बेसिस, ठीक है, फ्रॉम टुमारो 1 PM एंड 9 PM। चलो, तो सी यू टुमारो एट 1 PM।